اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبس و تولا ان جاءہ العاما وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آج کی صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اس کا معنی ہے عبس و تولا۔ عبسا و تولا کا معنی کیا ہے؟ عبسا کا معنی ہے پیشانی گھبچانا۔ عبسا کا معنی کیا ہے؟ عبسا کب کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جب کسی کے سامنے کوئی ایسا عمل ہو جو ان کو ناپسند ہو، سامنے والے کو ناپسند ہو، تو سامنے والا ایسا ریئیکٹ کرے گا، ان کے چہرے سے ہاؤ بھاؤ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان کو گرا گزرا، یہ بات ان کو تکلیف دہ ثابت ہوئی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو اچھی نہیں لگتی ہے، جب چہرہ کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں عبسا۔ کیا کہتے ہیں؟ عبسا۔ تو قرآن شریف میں ہے عبسا و تولا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تیوری چڑھائی، و تولا منہ پھیرا، یعنی چہرے پر شکن آیا، چہرے پر شکن آیا، یا چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس طریقے سے بھی آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، یعنی چہرے سے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت کو اچھا نہیں لگا، تیوری چڑھائی۔ وتولا، اور وتولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، اور منہ پھیر لیا، تو اس سے اگلے انسان کو سمجھ میں آتا کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ فرماتا ہے عبسا۔ اب سوال ہے کہ عبسا تیوری چڑھائی، چہرے پر شکن آیا، ناگواری گزری، یہ سب کس کے لیے؟ کس کے چہرے پر شکن آیا؟ کون منہ پھیر لیا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس آیت کا شان نزول جب تک آپ نہیں جانیں گے تب تک اس آیت کو آپ سمجھیں گے نہیں۔ اس آیت کے شان نزول کو سمجھیے، بیک گراؤنڈ کو سمجھیے، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ یا سرداران قریش کے سامنے بیٹھ کر ان کو دین کی دعوت فرما رہے تھے۔ سرداران قریش کے جو ذمہ داران، بڑے بڑے سردار لوگ تھے، وہ جمع تھے، ان کے بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر انہیں دین کی باتیں بتا رہے تھے، دین کی طرف راغب کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اور یہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس میں کون لوگ تھے؟ جو سرداران قریش تھے، ان میں آپ کو ہم بتا دیں کہ ان میں کیا نام ہے، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف لوگ تھے۔ ان لوگوں کو بیٹھا کر حضور دین کی باتیں کر رہے تھے، اور ایک طرف ایک صحابی تھے، صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام قبول پہلے سے کر چکے تھے، یہ نابینا صحابی تھے۔ کیا تھے؟ نابینا صحابی تھے۔ ان کو دکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مشروف ہیں، ان کو دکھا نہیں، معلوم نہیں ہوا نابینا ہونے کی وجہ سے کہ حضور کیا نام ہے کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ بس دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس تشریف لائے، صحابہ تھے، حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور کو آواز دی، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے
उसकी तालीम हमें दीजिए। अल्लाह के रसूल, जो कुछ भी अल्लाह ने आपको बताया है उसकी तालीम मुझे दीजिए, मुझे बताइए। और इनको इस बात का अंदाजा न हुआ कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मसरूफ है, किसी तरफ मशगूल है। तो इस वजह से इसको कहते हैं कत्ए कलामी हुई हुजूर की बारगाह में। कत्ए कलामी का मतलब इंटरप्शन हुआ, दो बातों के बीच में जब कोई तीसरा टोक देता है तो उसको इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्शन हुआ यानी कता रुक गया, कलाम रुक गया, कत्ए कलामी हुई, मुदाखलत हुआ गुफ्तगू में। तो इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात से कि हुजूर कहीं मसरूफ हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, और ये साहब आकर उसी में आवाज दे रहे हैं, निदा दे रहे हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ आपको सिखाया वो मुझे सिखाइए। तो इन हरकत से इस बात से हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी हुई। अबसा व तवल्ला, हुजूर के चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हो गए। अबसा, तेवरी चढ़ाई हुजूर ने, अबसा, हुजूर को तकलीफ हुई, व तवल्ला, और हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर ने चेहरा फेर लिया, यहां तक कि वहां से हट गए और दूसरी जगह चले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह चले गए, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, क्या आपने चेहरा फेर लिया, आपको नागवारी गुजरी, आपको नागवार हुआ इस बात से क्या जाअहुल आमा, क्या आपके पास एक अंधा आया, एक नाबीना आया, इस बात से क्या नाम है आपको तकलीफ हो गई, आप क्या नाम है तेवरी चढ़ा ली और चेहरा फेर लिया। अल्लाह ताला ने हुजूर की तरबियत फरमाई। हमारी और आपकी तरबियत हमारी तरबियत फरमाया, आपकी तरबियत आपके वालिदैन फरमाते हैं। अब जिनके बीच में बैठते हैं, आई बात समझ में, जिनके बीच में बैठते हैं वही आपकी तरबियत फरमाएंगे। कुछ लोग कहने वाले कह देते हैं कुरान शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा गया, कई हदीस में भी है। और दुरूद देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, तो उम्मी का मतलब कुछ लोग ये निकालते हैं कि अनपढ़, जाहिल। आई बात समझ में, उम्मी का माना निकालते हैं कि अनपढ़ नबी, जाहिल नबी। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अनपढ़ हुजूर के ताल्लुक से बोला जाता है, हालांकि उम्मी के और कई माने अच्छे अच्छे हैं, और कई माने अच्छे अच्छे हैं। आए बात, तो अच्छे अच्छे माना ना लेकर वो माना लिया जाता, बाज लोग लेते हैं जिससे हुजूर के शान में कमी आए, माज़अल्लाह। ऐसे माने को हुजूर के शान में चस्पा करते हैं जिससे हुजूर के शान में कमी आए, और ऐसा माना जिससे हुजूर की शान में चार चांद लगे, ऐसे माने को बाज लोग नहीं लेते, बाज लोग नहीं लेते। तो कहते हैं हुजूर ने पढ़ाई नहीं, हुजूर ने लिखा नहीं, क्या नाम है, तो हुजूर को अनपढ़ न कहे तो और क्या कहे। जी हाँ, बात तो सही है कि हुजूर ने पढ़ा नहीं, हुजूर ने लिखा नहीं, मगर किससे नहीं पढ़ा। अरे किसके अंदर इतनी ताकत थी जो हुजूर को पढ़ा देता। अरे हुजूर किससे पढ़ते, हुजूर किससे पढ़ते, तुमसे पढ़ते। हुजूर पढ़ने नहीं आए थे, कायनात को पढ़ाने आए थे। हुजूर पढ़ने नहीं आते, कायनात को सिखाने आए थे। अरे हुजूर को पढ़ाया किसने, तो खुद खुदा ने पढ़ाया है। हुजूर की तरबियत कोई और नहीं, खुद खुदा ने फरमाई है, खुद खुदा ने फरमाई है। ये एक इज्तिहाद था, ये एक इज्तिहाद था। तो इस इज्तिहाद में हुजूर अल्लाह ने हुजूर की लतीफ अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई। क्या है मुस्तफा, तरबियत फरमाई। देखिए कितनी अच्छी तरबियत दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, तरबियत फरमा रहा अपने नबी, अपने महबूब की। हमको और आपको तो आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, उस्तादों ने तरबियत दी, मगर अल्लाह ने अपने हबीब को खुद तरबियत दी, खुद तालीम दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद कौन हुए, हुजूर का उस्ताद कौन, खुद अल्लाह है। हाँ मखलूक ठीक है, मखलूक से कैसे पढ़ेंगे जी, मखलूक को तो पढ़ाने आए हैं,
मखलूक को तो राह दिखाने आए, उनसे पढ़ लेते तो कोई ना कोई तो उस्ताद का मकाम तो क्या नाम बड़ा होता है, तो कोई उस्ताद बन जाता तो हमारे नबी आजम कैसे रह जाते, माज़अल्लाह, पढ़ते कैसे, आई बात समझे। तो याद रखे अल्लाह ने तरबियत दी, यहां पर भी देखिए यही तरबियत की बात है। अच्छे मायने में लीजिए ना भाई, एकदम अच्छे मायने में तफसीर कीजिए। देखिए यहां पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि नाबीना होने की वजह से इंटरप्शन किए दो बात करने के बीच में, तो हुजूर का नागवारी गुजरा और हुजूर चेहरा फैल लिए चले गए। और हुजूर कहां थे, हुजूर कहां थे, हुजूर क्या नाम है सरदाराने कुरैश के पास बैठकर दीन की बातें बता रहे थे, दीन की बातें बता रहे थे। अच्छा ये एक इज्तिहाद का मसला है। आई बस दीन की बातें बता रहे थे, नियत ये थी क्या अरे ये तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तो अपने हैं, सहाबी हैं, आई बात समझ में, इन्हें तो हम सिखाते ही रहेंगे, ये कुफार है, ये मुशरिकीन है, आई इनमें ये सब सरदार लोग हैं, इनमें एक भी अगर इस्लाम में दाखिल हो गया तो इनके साथ कई लोग दाखिल होंगे, इनमें एक भी दाखिल हो गया तो इनके साथ कई लोग दाखिल हो गए, अगर ये चले गए तो नुकसान ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो रोज हमेशा हाथ नहीं आते, वो इत्तेफाक से कभी कभी हाथ आते हैं, बड़े लोग रोज का हाथ नहीं आते। तो ये सरदारान लोग आज जमा हुए हैं, सरदारान है, लाओ इनको तालीम दो दिन की बात, वरना फिर क्या नाम है जल्दी हाथ आने वाले नहीं। ये सोचकर हुजूर की जात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और उनको तालीम देना ज्यादा मुनासिब समझा, ज्यादा बेहतर समझा, और इनको तो ये समझा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने हुजूर की तरबियत फरमाई, हुजूर को बताया अबसा वतवल्ला, आपने तेवरी चढ़ाई, चेहरे पर शिकन लाया, वतवल्ला और क्या नाम मुंह फेर लिया, चेहरा फेर लिया, इस जाहुलामा, इस बात से क्या आपके पास एक नाबीना आया, आपके पास से एक नाबीना आया, वमा युद्री का लाल लहू यज़्ज़क्का, वमा युद्री का क्या पता वो सुथरा हो जाता, क्या पता वो सुथरा हो जाता। कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में कहा गया तो वमा युद्री का, आप क्या पता कि ये सुथरा हो जाते, क्या हो जाते, बोलिए ये पाक हो जाते, आपकी नसीहत इन पे अमल करती, और ये जक करो, और या नसीहत हासिल करते, या नसीहत करते, फतनफाहु जिक्रा, तो नसीहत इन्हें फायदा देता, नसीहत इन्हें फायदा देता है, नसीहत हासिल करते। व अम्मा मनिस्तगना फाअंत लहू तसद्दा, ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो आपकी चाहत में आपकी तरफ दौड़ते हुए भागते हुए आपकी बारगाह में आया, आपका अपना आपके पास आया, आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, आप इनको नहीं बता रहे हैं, और ये तो सुथरा होता, आपके जिक्र से फायदा हासिल करता और नसीहत इन्हें फायदा पहुंचाती, आई बस। लेकिन वअम्मा मन इस्तगना, इसके अपोजिट देखिए, वो लोग जो लापरवाह है आपकी नसीहत से, वो लोग जो कुफारों में दाखिल हैं, कुफार हैं, लापरवाह हैं, जिनको आपकी नसीहत से कोई गर्ज नहीं, जो नसीहत को पाने का न शौक रखते हैं और न नसीहत से फायदा उठाने का कोई इरादा है, फ़अंता लहू तसद्दा, और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिनको कोई गर्ज नहीं है, जो लापरवाह है, जो बेपरवाह है, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो भाग कर आ रहा है, आप इनकी तरफ तवज्जो ना फरमाए, बल्कि इनसे चेहरा फेर लिया, बल्कि इनसे चेहरा फेर लिया। वह यख्शा वमा अलैका अल्ला यज़क्का, अब तालीम दी, ए मुस्तफा जाने रहमत, आपसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा इस बात से कि वो लोग जो सरदार मक्का जिनको आप तालीम दे रहे थे इस्लाम की, जो लापरवाह है, वो चाहे सुथरा हो चाहे ना हो, इससे आप पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। देखिए तकरीर करने वाले आलिम उलमा को जब आप बुलाते हैं, तकरीर करते हैं, करने के बाद आखिरी में क्या कहते हैं, आखिरी में एक जुमला कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, अरे हम पर जो फर्ज था
क्या फर्ज था कि जब तुम कोई बात जानो दीन की, इस्लाम की, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, शरीयत के बारे में, तो लोगों को पहुंचाओ। बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, लोगों को पहुंचाओ, लोगों को बताओ। अब वो तो हमको जितनी मालूमात थी वो हमने बता दिया, वमा अलैना, अब हम पर कुछ नहीं है। अब हम इसके बारे में पकड़े नहीं जाएंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया लोगों को। अब आप जानो, आपका काम जानो, अब आप जानो, आपका काम देना। गालिबन हर मुकर्रिर ये बात कहता है कि नहीं कहता है, बताइए। अब आप जानो, मगर सवाल ये कि कहता तो है मगर पब्लिक समझती ही नहीं है इसको। कहता तो है मगर 80% पब्लिक से पूछे जो आखिरी में वमा अलैना इल्लल बलाग का इसका मतलब क्या है, हमारा नहीं ख्याल है कि यह मालूम होगा, हमारा नहीं ख्याल है कि मालूम होगा। आई बात समझ में, लिहाजा समझ लीजिए इसका यही माना है। यहां पर भी वही है, वमा अलैका, आपसे कोई पूछताछ नहीं हो। अल्लाह यज़्ज़का, इस बात से कि वो पाक ना हो, वो सुथरा ना हो, इससे आपके बारे में पूछताछ नहीं होगा। वअम्मा मन जाअका यसा, लेकिन वो जो आपके पास भागते हुए आया, जो आपके पास भागते हुए आया, वह हुआ यख्शा, उसके दिल में खौफ भी है, डर भी है। फ़अन्त अन्हु तलाहा, फ़अन्त अन्हु तलाहा, तो आप उनसे मुंह फेर रहे हैं, आप उनको नहीं बता रहे हैं, आप उसको तालीम नहीं दे रहे हैं। आप क्या नाम है, वो आप उसे छोड़कर दूसरी तरफ मशगूल हो जा रहे हैं। तो आप उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ मशगूल हो जा रहे हैं। नहीं, आप उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने हबीब की तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर। अब सोचिए, एक बात अलग से बता रहा हूं कि सोचिए, क्या सोचिए, एक माँ अपने बेटे की तरबियत करती है, एक माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करती है, तो बच्चे के अंदर कुछ कमी भी होती है, तब भी कहती है मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, मेरे बच्चे से ये खता नहीं हो सकती, मैंने इनको सिखाया है, ये खता नहीं हो सकते। अरे मियाँ, माँ जिस बच्चे को तरबियत दे वो नाज करे, माँ जिस बच्चे को तरबियत करे वो उस बच्चे को बहुत अच्छा समझे। अरे मियाँ, जिसकी तरबियत खुद खुदा ने की है, जिनको खुद खुदा ने तालीम दी हो, बताओ उनके अंदर कोई कमी रह जाएगी? अल्लाह अकबर। तो जो लोग नबी के अंदर कमी निकालने में कोशिश कर रहे हैं, कमी निकालने में एक दूसरे में आपस में सबकत ले जा रहे हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि इनकी तरबियत किसने की है। अल्लाह अकबर। उन्हें गौर करनी चाहिए, उन्हें समझनी चाहिए कि आखिर इनकी तरबियत की तो किसने की, इनको तालीम दिया तो किसने दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तालीम दिया है। अरे जिनकी तरबियत खुद खुदा कर दे, अल्लाह अकबर, उनके अंदर कमी रह जाएगी जनाब, उनके अंदर कमी रह जाएगी जनाब। लिहाजा कमी निकालने के चक्कर में न पड़े और कमी निकालकर अपने ईमान से हाथ ना धो बैठे। हुजूर के अंदर कमी निकालने का एक ही सजा है कि ईमान ही खत्म है। क्या ईमान ही खत्म है? देखिए कितने प्यारे अंदाज में, कितने लतीफ अंदाज में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबियत दी कि ये काम ना करके ये काम ज्यादा मुनासिब है, ये काम कीजिए। इनको आप बताएंगे ये तो ये सुथरे हो जाएंगे, इनको बताएंगे तो ये उस पर अमल करेंगे, इनको नसीहत करेंगे तो ये नसीहत से ये फायदा उठाएंगे, मगर ये तो बेपरवाह है, लापरवाह है, इनको आपकी बातों का कोई वजन नहीं इनके नजर में है। लिहाजा इनके चक्कर में ना पड़िए, जो अपने हैं उन्हीं के चक्कर में पड़िए, जो अपने हैं उन्हीं को तालीम दीजिए, जो अपने हैं उन्हीं को दीन की बातें बताइए, जो अपने हैं उन्हीं को पकड़िए। अल्लाह अकबर। बात बता दे, जब यह आयत नाजिल हुई हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के बारे में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, उस दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इज्जत देते थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को, और इज्जत देते और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हाजतें पूछते और उनकी पूरी फरमाते। अल्लाह अकबर। खुद पूछते और बड़ी मोहब्बत करते हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि कई बार गज़वात में, कई बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले जाते गज़वात में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को अपना नायब बना देते। इतनी मोहब्बत करने लगे। क्या जब से आयत नाज़िल हुई बड़ी मोहब्बत करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को, और क्या नाम है उनकी हाजतें पूछ पूछ कर पूरी करते।